Well, as a member of parliament from Punjab, I am extremely distressed and perturbed about the happenings in Punjab. The reason I say that is because the peace in Punjab was extremely hard won. 25,000 people, bulk of them congressmen, sacrificed themselves at the altar of nationalism in order to bring peace back to Punjab after fighting against the forces of extremism, militantism and terrorism between 1980 and 1995. Punjab is a border state. It is going through an intense social upheaval, primarily because of the angst in the people against the farm laws promulgated by the NDA-BJP government. Under those circumstances, if such shenanigans play themselves out in the public space, it has serious implications on the stability of a border state. I have just returned from a regional security conference, and I can tell you that the only people who are very happy with what is going on in Punjab is the deep state of Pakistan. They feel that they will get an opportunity to fish in troubled waters. And therefore, there is a higher ideal than power. There is a higher ideal than becoming ministers and holding organizational positions. And that higher ideal is ensuring the peace, tranquility, stability of a border state like Punjab. And therefore, under those circumstances, what has been playing itself out is extremely unfortunate, for the lack of a better word. But sir, how do you see why Mr. Sidhu, who is the president of the party, is doing like this? He is resigning from the post, saying that he cannot sacrifice for the Punjab, he cannot compromise on the issue of Punjab. So what's the message he is trying to give, and what do you want to say on this? Well, the gentleman can answer for himself. I'm in no position to, or neither would I like to, articulate or second guess a question which can be best addressed by him. But all I'm saying is, as someone who cut his teeth on the trench lines of the fight against terrorism in Punjab, who personally suffered because of the depredations of the militants, who saw families of congressmen wiped out in that struggle between 1980 and 1995. This kind of instability, which has serious implications on the stability of a border state, are extremely disturbing, to say the least. Well, it's extremely unfortunate what is happening, and I have no hesitation in saying that the situation has been completely mishandled. I often wonder to myself, why did all this not happen when Mrs. Asha Kumari was in charge of Punjab? Why were things absolutely so stable and the state was progressing in a positive manner, heading in a direction which was benefiting each and every citizen of Punjab? And therefore, under those circumstances, I think people should realize the gravity of the situation. People should realize the long-term implications of what these actions are on a border state. And they need to talk to their MPs. They need to talk to the 10 or 11 MPs from Punjab. They need to talk to other senior people to ensure that whatever may have been whatever electoral cost we may have to pay, the larger objective that peace in Punjab should not be disturbed is something which needs to be kept in mind. So last question to you. So are you saying that the present people who handle the situation of Punjab, like the AICC in charge, and the other observers, they were not able to settle down to tackle the things which are going on, as Captain Amrinder Singh said that he felt humiliated and he was very disturbed by the behavior? Well, the fact remains that the peculiar and unique situation in Punjab
as characterized by 15 years of militancy and the sensitivity that was required to handle such a delicate, if I may add, a precarious situation was completely missing. And I do not want to indulge in finger pointing, but I would be less than honest with myself if I do not say that the situation was completely mishandled. So one word about Mr. Captain Amrinder Singh. What should be the way to tackle him? What should be the way to approach him? Because well, Captain Amrinder Singh is someone who is an extremely tall leader. He was a close friend of my late father's. Our family comes from Patiala. We have known each other over the decades, and therefore, under those circumstances, I think Captain Amrinder Singh is in the best position to articulate for himself. He does not require the services of either my vocabulary or articulation to do that. But suffice to say that whatever Captain Amrinder Singh had predicted is unfortunately coming true. And the concern of a large number of us who see things beyond the cut and thrust of partisan politics is the implications that this will have on the larger stability of Punjab, given the social turmoil that the state has been experiencing because of the farmers' agitation over the past almost 1 year. And therefore, what Punjab required at this point of time was a safe pair of hands, was stability that could keep the ship on an even keel. And unfortunately, people who were charged with the remit of looking at the state did not have a clue about the big picture. सर किस तरीके से स्थिति देखते हैं आप पंजाब की? पंजाब के अंदर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आला कमान कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रहेंगे, मूडी आदमी हैं, थोड़े से इमोशनल आदमी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं पहले ही कहा था कि इस तरीके के शख्स हैं, मिसगाइडेड मिसाइल हैं, इस तरीके से। देखिए, पंजाब से एक सांसद होने के नाते जो सारा घटनाक्रम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी। लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज़ से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। सर, जिम्मेदार कैसे मानते हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? आप लोगों की अभी चेंज ऑफ गार्ड वहाँ हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं,
वो नए नए जोश के साथ बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात को प्रोजेक्ट कर रही है, वो दलितों के साथ है और प्रोग्रेस की बात हो रही है। वहाँ पर इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष ही अगर पद छोड़ देते हैं तो कैसे चलेगा ना? देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। सर, आखिरी सवाल आपसे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी फिगर है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सिद्धू को वो नहीं जीतने देंगे। स्टेट को लेके भी वो चिंताग्रस्त है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शब्दों की भी बात, उनका भी नज़रिया यही है कि बहुत सेंसिटिव है मामला पंजाब में। लेकिन अब जब राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो कैसे सोल्यूशन निकल पाएगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं मैं आहत हूँ, मुझे ढंग से बात नहीं करिए, मुझे कहा गया होता तो मैं तैयार था, मैं इस्तीफा दे देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम किया गया उन्हें अच्छा नहीं लगा। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं और पंजाब के बहुत कद्वर नेता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है। और सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि अगर पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ISI है, उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मंसूबों को अंजाम देने का। और इसमें लोग सुलझे हुए लोग हैं। पंजाब से 10 कांग्रेस के सांसद हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार आतंकवाद की उस आग में निछावर किए हैं। उनके परिवारों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भी समझते हैं, देश हित को भी समझते हैं। उनसे और बाकी सुलझे हुए लोगों से बात करके सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बार बार ये बात की जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुँचे हैं, किसी अमुख नेता से मिल सकते हैं, एक पार्टी बना सकते हैं। क्या लगता है, क्योंकि आप करीब से जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उनका टेम्परामेंट समझ के, उनकी बात समझ के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी फिगर हैं, ऐसे में जो है किस तरीके से आप देखते हैं उनको और इस पूरे मूव को? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे पिताजी के दोस्त थे। हम सब लोग पटियाला से हैं। बहुत देर से कैप्टन साहब को उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक रिश्ता रहा है। और जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फ़ैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फ़ैसला देश हित को सामने रखते हुए ज़रूर फैसला करेंगे। सर, स्थिरता का नुकसान चुनावों में भी होगा। 4-5 महीने कुल बचे हैं, क्योंकि अपोजिशन देखिए, चुनाव एक बात है। पंजाब ने जो 1980 से 1995 तक झेला है और पंजाब में बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत परिवार तबाह हुए इस पंजाब की अमन और शांति को बहाल करने के लिए। मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मुझे पंजाब और की अमन और शांति की चिंता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।